प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 के अंतर्गत वीडियो शूट करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं। आइए बच्चों, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द स्लोप m ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is given by slope m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to difference of ordinate upon difference of abscissa. पुनः रिपीट, the slope m of non-vertical line passing through the points x1 y1 and x2 y2 is given by m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to difference of ordinate upon difference of abscissa. Slope of horizontal line is 0. Slope of a horizontal line is 0 and slope of a vertical line is undefined. Third point, two lines are parallel. Two lines are parallel if and only if their slopes are equal. दो लाइंस पैरेलल होती हैं यदि और केवल यदि उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। L1 पैरेलल टू L2, लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2 फॉर ऑल M1 इक्वल टू M2, लाइन L1 पैरेलल टू L2 फॉर ऑल slopes M1 equal to slope M2. Next, two lines are perpendicular if and only if the product of their slopes is -1. दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि और केवल यदि उनके स्लोप का गुणनफल -1 है। लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2 फॉर ऑल M1 into M2 -1, लाइन L1 परपेंडिकुलर L2 फॉर ऑल slopes M1 into slopes M2 equal to -1. 3 points P, Q and R are collinear if and only if slope of PQ equal to slope of QR. तीन बिंदुएं संरेख होंगी यदि और केवल यदि उनके स्लोप्स बराबर हों, यानी स्लोप्स ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप्स ऑफ QR. नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप M, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप M and making an intercept C on y axis is y equal to mx plus c. एक रेखा जिसकी प्रवणता m हो और y अक्ष पर कटा अंतःखंड c हो, y इक्वल टू mx प्लस c होती है। पुनः रिपीट, द इक्वेशन of line
with slope m and making an intercept C on y-axis is y equal to ms plus c. Next point, the equation of line with slope m and passing through the origin is y equal to mx. यम स्लोप वाली रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाती है y इक्वल टू mx होती है. पुनः रिपीट, द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m and passing through the origin is y equal to mx. प्रिय बच्चों, मेन पॉइंट्स के अंतर्गत पॉइंट 7 एंड अक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप m1 and m2 is given by tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. पुनः रिपीट, एंड acute angle theta between the lines having slopes m1 and m2 is given by tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Next point, the equation of a line which passes through the given points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 second bracket x minus x1. Clear? Next point, the equation of a line making intercept A and B on the x-axis and y-axis respectively is x by A plus y by B equal to 1, where A is the intercept on x-axis and B is the intercept on y-axis. Next point, the equation of the straight line. The equation of the straight line upon which the length of the perpendicular from the origin is P and the angle between this perpendicular and positive x-axis is alpha is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to P. पुनः repeat, the equation of the straight line upon which the length of the perpendicular from the origin is P and the angle between this perpendicular and positive x-axis is alpha is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to P. क्या होता है बच्चों? x cos alpha plus y sin alpha equal to P. इसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है. क्लियर? नोट कीजिए, बिठा दें. Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू ईच कंडीशन. प्रिय बच्चों, निम्नलिखित बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाओं की प्रत्येक प्रतिबंध के अनुसार
प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्लियर? ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आइए इसको बच्चों हम सब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 4, 6 एंड पॉइंट -2, 3। क्लियर? यहां पे लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट ए इक्वल टू 4, 6 एंड पॉइंट बी इक्वल टू -2, 3। ठीक है बच्चों? ये हमारे पॉइंट गिवन है ए एंड बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 6 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों -2, 3। ठीक है? इन पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? एक लाइन। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन का क्या निकालना है? स्लोप यम। ठीक है? लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन AB is m y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू कितना है बच्चों? 3। y1 की वैल्यू 6, 3 - 6 अपॉन x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 4। ठीक है? क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो -3 -3 / -6, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। स्लोप कितना आ गया? 1/2। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें गिवन है -2, 5 गिवन -2, 5 एंड 2, 3। ठीक है? इसको लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट ए -2, 5 एंड पॉइंट बी 2, 3। क्लियर? मान लेते हैं हमारे पॉइंट ए है और ये बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, 5। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3। ठीक है? इन पॉइंटों को हम मिला देंगे तो एक लाइन जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी बच्चों? लाइन। इस लाइन का स्लोप निकालना है। लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन AB इज स्लोप ऑफ द लाइन AB is m y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? यहां पर 3। y1 की वैल्यू क्या है? 5। x2 की वैल्यू क्या है? 2 और x1 की वैल्यू -2 है।
तो पहले हम माइनस बनाएंगे फिर -2 लिखेंगे। क्लियर? माइनस बनाया फिर -2 लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2, 2 + 2 इक्वल टू -2/4। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो -1/2 is the right answer. -1/2 is the right answer. नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट यहां पर गिवन है। गिवन 0,4 एंड 4,0। इसको हम लेट कर लेंगे। लेट द पॉइंट ए 0,4 एंड पॉइंट बी 4,0। ठीक है? कहने का मतलब ए और बी हमारे दो पॉइंट हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 0,4 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 4,0। ठीक है बच्चों? यदि हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो एक लाइन जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट होती है बच्चों? लाइन ए बी जनरेट होती है। इस लाइन ए बी का स्लोप यम हमें फाइंड करना है। लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज यम इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर? ये बच्चों हमारा x1 गिवन है, 4y1 है, यहाँ पे x2 4 है, y2 क्या है? 0 है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है बच्चों 4, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 0। यह आएगा -4/4। अब ये कैंसिल आउट होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो स्लोप हमारा जो है -1 आ जाएगा। किसका? लाइन ए बी का। क्लियर? Yes, sir. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट गिवन है a, b and a sec square theta, b cosec square theta। क्लियर? Yes, sir. तो यहां पे लेट कर लेंगे। लेट सॉल्यूशन, लेट पॉइंट ए b पॉइंट बी a sec square theta, b cosec square theta। ठीक है बच्चों? इन पॉइंटों का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है a, b और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है a sec square theta, b cosec square theta।
बी कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसको मिला देंगे तो एक लाइन जनरेट होगी, वो लाइन ए बी होगी जिसका स्लोप यम होगा। ठीक है, लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज यम। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज यम। x2 की y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? पहले फार्मूला लिख देते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है b कोसेक स्क्वायर थीटा। y1 की वैल्यू है b माइनस b अपॉन x2 की वैल्यू है a सेक स्क्वायर थीटा और x1 है a। क्लियर। अब हम इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे b कॉमन ले लेंगे बच्चों। b कॉमन लेंगे, ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और यहां पर a कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। Yes, sir. फिर इसको हम यहां पे लगा दे रहे हैं, ये हो जाएगा b बाई ए। टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। क्योंकि 1/10 स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा b बाई ए कॉट के पावर 4 थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड। According to the following condition, the line makes a positive angle with the x-axis and find the measure of the intercept cut on the y-axis। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रतिबंध के अनुसार रेखा द्वारा x अक्ष से कोण बनाती है। रेखा द्वारा धन x अक्ष से कोण बनाती है एंड फाइंड द मेजर ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑन द y एक्सिस। तथा y अक्ष से कटे अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। फाइंड द मेजर ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑन द y एक्सिस। तथा y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चंस का फिगर इस तरह बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, x अक्ष है और ये हमारा क्या है बच्चों, y अक्ष है। एक लाइन है जो यल है। किससे रिप्रेजेंट है बच्चों, यल से। ठीक है, ये x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन यल थीटा कोण जनरेट करती है।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और कट ऑन द वाई एक्सिस, कट ऑन द वाई एक्सिस इंटरसेप्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी ये सी हमें ये फाइंड करना है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन सी फाइंड करना है, और हमें इंक्लिनेशन फाइंड करना है थीटा को। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट गिवन है √3y 3x + 7, ठीक है। अब इसको बच्चों हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लिखेंगे ऑन कन्वर्टिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। प्रिय बच्चों ये हो जाएगा y = 3/√3 x + 7, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3/√3 x + 7। अब √3 से √3 कैंसिल, implies that y = √3x + 7। अब इसका हम कंपेयर कर देंगे किससे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c से। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग y = mx + c, we get m = आ जाएगा बच्चों कंपेयर करने पर। देखिए mx से √3x को कंपेयर करेंगे तो x से x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। m = √3 इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन, ये c आ जाएगा, c = +7, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंक्लिनेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंक्लिनेशन। तो m = क्या होता है? वी नो दैट स्लोप m = होता है बच्चों tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और ये √3 है। √3 किसकी वैल्यू होती है? इंप्लाइज दैट tan थीटा = tan 60। क्या? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? इंप्लाइज दैट थीटा = 60 डिग्री, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं द लाइन मेक्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन, द लाइन्स makes a positive direction, the line makes positive direction with x axis is the line makes angle, the line
makes angle. The line makes angle a positive direction with x axis is 60 degree and intercept on the y axis and intercept on the y axis from the origin is and intercept on the y-axis from the origin is c equal to +7। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दे। Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, गिवन है y प्लस √3x -5 on converting slope intercept for y equal to mx plus c। ये हो जाएगा y equal to -√3x इक्वल टू 0 है। ठीक है, √3x + 5। अब इसका जो है कंपेयर कर देंगे, किससे करेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं on comparing y equal to mx plus c we get तो यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -√3 and the value of c is +5 units। ठीक है, we know that स्लोप m होता है tan थीटा इक्वल टू -√3। क्लियर, -√3 किसकी वैल्यू होती है, इसे लिख देंगे tan थीटा -tan 60 डिग्री। फिर अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे tan 90 + 60 डिग्री। ठीक है, tan 90 + 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, अब इसको ऐड कर दीजिए। नहीं, किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 30। तो यहाँ पे 30 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा tan 120 डिग्री। कितना आया बच्चों, tan 120 डिग्री। ठीक है, -√3 है। हाँ, 30 ऐड करेंगे, 120 आया। क्लियर, tan थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा
120 डिग्री। ठीक है प्रिय बच्चों, इसका इसकी मीनिंग हो गई द लाइन्स मेक एन एंगल ए पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस इज 120 डिग्री। ठीक है एंड इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन इज +5। ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है बच्चों, y इक्वल टू x+7। ठीक है अब इसका कंपेयर करेंगे ऑन, तो कंपेयर ही डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू mx plus c which is the slope intercept form, slope intercept ठीक है तो यम एक्स का कंपेयर करेंगे, इसकी मीनिंग हो जाती है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यक्स की मीनिंग हो जाती है यम एक्स इंटू 1 इंटू यक्स एंड सी इक्वल टू 7। यक्स से यक्स कैंसिल बच्चों, तो स्लोप यम आ गया 1, यम होता है टेन थीटा, 1 जो है वैल्यू होती है 1045, यहाँ हम लिख देंगे 1045 डिग्री। ठीक है क्लियर। Yes, sir. तो इसकी मीनिंग ये हो गई द लाइन्स makes angle a positive direction with x axis is 45 डिग्री। इतना 45 डिग्री and intercept on the y axis from the origin is +7। क्लियर। इसका फिगर इस तरह बनेगा, ये हमारा x अक्ष है और ये बच्चों y अक्ष है, ये